Hello and good afternoon, everyone. I'm here to conduct this session, very interesting one in the series of Decade of Change, and I'll be here joined with very illustrious two representatives. One representing the government, which is all pervasive when we talk about rural health, and I'll be also joined by our private representative who will be coming and diverging into the details of how rural health technology is doing the trick. So, may I welcome Adhar, our speakers, who are joining me here. Thank you. So, very good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Hiralal, sir. May I introduce him? So, Dr. Hiralal, who is an IS, is Additional Mission Director, National Health Mission, Uttar Pradesh. He's additionally Project Director, Uttar Pradesh AIDS Control Society, and has a very illustrious career over the administrative service, as well as he has quite a stay period in the health डिपार्टमेंट सो ही विल एनलाइटन अस टुडे आज वो हमारे इस सेशन को प्रकाशित करेंगे अपने वैल्यूबल इनपुट्स के साथ और ये एक विंडो हमें दे देंगे कि व्हाट इज हैपनिंग एट द गवर्नमेंट लेवल हाउ द लास्ट 10 years जिसे हम डेकेड ऑफ चेंज आज बोल रहे हैं पिछले 10 सालों में और स्पेशली क्योंकि हेल्थ में बहुत कुछ हुआ है पिछले 2 सालों में उस पे भी वो हमें डाइवर्ज करेंगे वो हमें बता देंगे एंड आई एम जॉइंड बाय एंड आई extend my heartiest welcome to Mr. Ajay Sharma, who I know is one of the forthcoming uh, health tech company representative. He is a co-founder and chief operating officer with health tech company which is My Family First, and उनका एक बहुत बड़ा डिवीजन है एक आइडेंटिटी है हेल्थ टेक रूरल में विच इज कॉल्ड देश क्लिनिक्स अजय जी एम आई राइट so Desh Yeah, you're Clinic right. Yeah. is a health solution that they have created currently for India. So I'm privileged to host him and वो हमें एक what is happening in health technology and vis-a-vis what are the models that are evolving is the 10 सालों में जो हमने चेंज देखा और करंटली कैसे हेल्थ टेक कंपनीज अपना योगदान दे रही हैं India mein and especially in the rural domain. So, welcome to both of you. And Thank you. I will first start with हीरालाल सर दैट हमारे यहाँ पे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में एक डॉक्यूमेंट आया था विच वॉज रूरल health mission what will we achieve by 2020 so we are plus 2 years एंड हाउ फॉर ये जो पिछला 10 साल चले गए हैं उस डेकेड में हम कितना कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ चुके हैं तो उसमें मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि व्हाट वाज द प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट कि इन टर्म्स ऑफ वो हमें क्या देने वाले हैं और वो हमें क्या दे रहे हैं तो डॉक्टर हिरलाल शुड आई टॉक अबाउट व्हाट वाज द प्रॉमिस दैट वाज गिवन टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ कि अगले 10 सालों में हम क्या अचीव करने वाले और यू वांट टू टेक इट So I would like to first of all take that what was decided in terms of कि हमें क्या मिलने वाला है अगले 10 सालों में. So it was that हम लोग एक comprehensive health care दे देंगे रूरल में where which will be focused on uh, cesarean section of hospitals. It will be focused on newborn mortality. It will be emergency care. Then it will also plan a lot of services, safe abortions, immunization,
communicable and non-communicable diseases में. And with regard to that, we were told that we will have 10,000 and PHCs, which will be operational 24 by 7 till 2020. So, how far have we reached there? Because we were asked, we had a goal of 157,922 sub-centers. We wanted to have 30,000 primary health centers. We were planning to have 5,649 community health centers, which point of delivery system for rural. We were also to give 1,193 subdivisional hospitals. And if I understand, the shortfall is there. So can you just really take us through ki abhi what have we achieved in this terms of rural health model? So, Agar you, may I may I start? yeah, yeah, please. Okay. Thank you for inviting me to discuss the rural health. Before going to get into the details, I would like to say there is a sentence, very simple sentence: prevention is better than cure. उसकी हिंदी है, बचाव इलाज से बेहतर है। ठीक है ना? हमारा जो रूरल हेल्थ है, चाहे अर्बन हेल्थ है, पहले रूरल हेल्थ था, एनआरएचएम था, अब नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, क्योंकि हमने अर्बन को भी इंक्लूड कर लिया। रूरल पहले कुछ दिन रूरल चला। देखिए है क्या, मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है, क्या इन लोगों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। हम लोग केवल क्योर पे बात करते थे। आदमी बीमार होगा, आकर के दवाई करेगा, हमें डॉक्टर चाहिए, पीएससी चाहिए, सीएससी चाहिए, ये सब चाहिए। वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक बात शुरू करी कि प्रिवेंशन भी होना चाहिए। तो प्रिवेंशन पे बहुत सारा काम हो रहा है। कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहता। नो बडी वॉन्ट्स टू गेट इल एंड वॉन्ट्स टू विजिट द हॉस्पिटल्स, वांट टू गेट ऑपरेटेड। कोई नहीं चाहता दुख दर्द पैसा खर्च करना। तो जो प्रिवेंशन इग्नोर्ड था, आयुष मंत्रालय बनाया गया, योगा, डिफरेंट आयुर्वेद को खूब बढ़ावा दिया गया। एंड मैं इस फोरम के माध्यम से गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूंगा कि प्रिवेंशन के माध्यम से पेशेंट की संख्या घटाई जा सकती है। तो जब पेशेंट की संख्या घटाएंगे तो मीनिंग देयर बाई ना हमें डॉक्टर चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए, उनकी संख्या जितनी है उतना ठीक हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, पहले जो कि नहीं था, वेलनेस सेंटर, सीएचओ का, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। वेलनेस वर्ड नहीं था, हेल्थ से था। तो ये जो काम हुआ, ये जो आप देखिए, आप जो बात, आपका जो क्वेश्चन है, इसका ही मैं जो उत्तर दे रहा हूँ, ये उससे जुड़ा हुआ है कि अगर वेलनेस सेंटर की संख्या बढ़ेगी, लोग बीमार होंगे ही नहीं, तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता कम होगी, सेंटर की ज़रूरत कम होगी, हॉस्पिटल की ज़रूरत कम होगी, और हमारे लोग ठीक रहेंगे। तो ये जो प्रिवेंशन वाला पोर्शन है, इसको मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको, जो हमारा ये सीएचओ हैं, जो सीएचओ हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, इनको अप स्किल करते हैं। और ये तो सॉफ्ट बात हो गई। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में जैसे उनको हम लोग अभी मोबाइल दिए हैं, फिर उसको अपग्रेड करके दूसरे और भी इंस्ट्रूमेंट जो सुटेबल होता है वो देते हैं, नेट कनेक्शन दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की मैं एक उदाहरण दूंगा कि 58,189 गांव है, हर गांव में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन दिया जा रहा है, सचिवालय का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कि जिससे गांव में ये सुविधा एक जगह पे मिल सके। तो ये जो सीएचओ का कॉन्सेप्ट है, वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, योगा का कॉन्सेप्ट है, सिद्धा का कॉन्सेप्ट है, और बीमारी को रिड्यूस करने के लिए खान पीन, ऑर्गेनिक फूड, ये सब जुड़ा हुआ है हेल्थ से। हेल्थ कोई एक सेपरेट इशू नहीं है। अब आप जो बात आप कहना चाह रही हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर्स और उसके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जहाँ तक इनकी बात है, देखिए सिचुएशंस, जो योजना बनाई जाती है, our aim is to achieve that objective, but there are situations, and that situation is changing every moment, I can say every moment. We have not seen that कि in the last 2 years
द लॉसेज वी इनकर्ड नोबडी हैव इवन एक्सपेक्टेड। हम भी अपने जिंदगी में ये पहली बार ऐसा पैंडेमिक देखा था, और इस पैंडेमिक का जो इफेक्ट है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग ऑन इकोनॉमी। और जब हमारी इकोनॉमी डाउन होगी तो हेल्थ सेक्टर उससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएससी, सीएससी, डॉक्टर, अब डॉक्टरों की संख्या, नर्सेज की संख्या, हेल्थ केयर की संख्या, ये इतना जल्दी से और क्वालिटी वाइज इतना आसान नहीं है कि हम लोग उनको जो हमें एक्सपेक्टेड है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है अंडर द करंट सिचुएशन, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ, जब इकोनॉमी डिस्ट्रेस है और बहुत सारी समस्याएं, जो हम लोगों ने कोरोना में दवाइयाँ खिलाई उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। मेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से मेडिकल पे बहुत ज़्यादा दबाव है। तो ये सब चीज़ों को प्राप्त करने के गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है। जैसे बिना टेक्नोलॉजी के, without adding the power of technology into the health management power we can't achieve। तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का काम किया गया, अभी लॉन्च किया गया, पहले कुछ यूटी में इसका प्रयोग किया गया, वहां से लर्निंग ली गई, और अब टेक्नोलॉजी के सहारे हर व्यक्ति का रिकॉर्ड होगा, और विद इन नो टाइम हम कुछ भी जान सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। सारी फार्मेसी होगी, सारे डॉक्टर होंगे, एवरी every aspect of healthcare will be in single platform। डेटा एनालिटिक्स होगा, डेटा का जो पावर है वो मिलेगा। अभी जो टेलीमेडिसिन पे मैं बहुत बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात आपने आज डॉक्टर अजय साहब के लिए आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया है, तो दैट इज नॉट माय डोमेन, सो आई विल नॉट गो इन द डोमेन ऑफ अजय शर्मा। Thank you, बट Hiral sir. Thank you very much. But हाँ, in spite of this whole ये तो 2 सालों का हमारे ऊपर एक पेंडेमिक का साइकिल आ गया, which was unprecedented और जो किसी ने ना सोचा था, and even the medical world doesn't know, एक आम आदमी तो बिल्कुल नहीं जानता था कि क्या होने वाला है. So apart from that pressure, we still are deficient what we should have achieved in 2020. 24% is नॉन अचीव्ड एरिया जो हम 2020 तक भी नहीं कर पाए। बट वी जस्ट से कि हर आपदा में एक अवसर है। सो एवरी चैलेंज गिव्स यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और उस अपॉर्चुनिटी में हमने ये देखा है कि दैट द टेक्नोलॉजी विच अदरवाइज जो लास्ट डेकेड हम अभी सीरीज कर रहे हैं, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज चेंज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड हेल्थ में सबसे ज्यादा टेक आज रोल प्ले कर रहा है। एंड रूरल में भी uh, इसको और ज्यादा हमें एग्रेसिवली लाना पड़ेगा टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट वी आर करेंटली फेसिंग। और टेक्नोलॉजी ये ज्यादातर it went more into information explosion, entertainment, manufacturing, where we were listening to lot of things जो पहला डेकेड पिछले 5-7 सालों से या 8 साल पिछले, तो ये हेल्थ को उतनी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं एड्रेस कर रही थी। दैन although it was happening maybe वो रोबोटिक्स ऑपरेशन करेंगे एंड ऑल दैट, तो एक बहुत फाइन टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज्यादा फोकस था। बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एक रूरल में एक बहुत सर्विस डिलीवरी का बहुत वैक्यूम नजर आया। और उस वैक्यूम में पास्ट 2 years ऑल्सो में हमने देखा है कि बहुत सारे हेल्थ टेक लेड इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर लेकर के आया है। एंड वन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स, क्योंकि हम अभी बात करते हैं जैसे सर ने बोला कि हम लोग हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव करे हैं, पेशेंट डेटा बहुत होगा। जब डेटा की इंटेलिजेंस आती है तो क्वालिटी, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस सब बदलता है। आप मैप कर सकते हैं, प्री डिटरमिन कर सकते हैं कि इस इलाके में इस मौसम में इस तरह की बीमारियां होती है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन जो होता है विच रिमेन्स स्टिल द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। जब मुझे तकलीफ है तो क्या मुझे क्वालिटी डॉक्टर की कंसल्टेशन मिलती है? क्या मुझे एक एप्ट मेडिसिन कि मुझे इस तकलीफ में
जो आपने कहा था ना कि बीमारी, जो डिजीज ऑफ बर्डन जो हमको अभी एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो कंसल्टेशन है, जो रूरल एरिया में हमारी पॉपुलेशन, खासकर जिनको ट्रैवल करना है लॉन्गर डिस्टेंसेस टू रीच बेटर डॉक्टर्स, बेटर हॉस्पिटल्स, तो उनके लिए हेल्थ टेक क्या कर रहा है, that Mr. Ajay Sharma will speak what his company is doing, as well as what the health tech पर, क्योंकि वो इंडस्ट्री में है, तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाउ हेल्थ टेक इज मूविंग to give the service delivery. So you have an uh, you can avoid a lot of diseases, but accidents, your age related, your youngsters, elders, इनको फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसल्टेशन कैसे मिल सकते हैं, what are those evolves, and what is that window that we have on rural health models. ओके। नो आई थिंक आपने जो शुरुआत करी कि कितने पीएचसीज होने चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हमारा ये मानना है कि ये सारा काम गवर्नमेंट का नहीं है। ऑल्दो it's a state subject and we believe कि government should provide the basic infrastructure, yes they should, but I think private players का भी उतना ही रोल बनता है इसके अंदर कि इसको वो कॉम्प्लीमेंट करें, सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करें। अभी हमने जब लास्ट ईयर पेंडेमिक आया तो एक बहुत अच्छी बात उस पेंडेमिक से पहले हो गई थी, वो था डिजिटल इंडिया मिशन। आई थिंक वो एक बेसिक चीज उसने तैयार करके रखी जिससे कि जब प्राइवेट सेक्टर ने सोचा कि चलो हम टेलीमेडिसिन के अंदर घुसते हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। प्राइवेट सेक्टर सडनली अपने आप में इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सकता, चाहे वो भारत ब्रॉडबैंड कार्यक्रम था, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने स्पेक्ट्रम दिया। आई थिंक वो एक बहुत जबरदस्त मुहिम थी जिसने देश के कोने कोने में डिजिटल नॉलेज पहुंचा दी और साथ में इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो गया। आई थिंक वो हमारे को एक प्लेन मिला जिसके ऊपर हमने बाकी काम करने शुरू करे। दूसरा ये आया कि क्या हम साथ में काम कर सकते हैं या अलग काम करें। सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स या सीएचसीज के लेवल पे काफ़ी सारी सुविधाएं सरकार देती है और कुछ चीज़ें हमें भी पता है कि इम्प्लीमेंटेशन में मिस हो जाती हैं कहीं ना कहीं। बट क्या उन चीज़ों को ही लेके हम आगे चलें या क्या हम एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे हमारी कंपनी है देश एक्चुअली एक एक्रोनिम है, डिजिटली एनेबल्ड स्मार्ट हेल्थ क्लिनिक। और ये देश हमने वर्ड भी क्यों यूज़ किया, बिकॉज हमारे जो दो को फाउंडर्स हैं दोनों एक्स आर्मी हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं और दोनों एक्स आर्मी हैं। तो एक देश के प्रति थोड़ा सा दिमाग में था तो कहा चलो सीमा पे सेवा करी पहले, अब अंदर भी करते हैं जाके। और वी डिसाइडेड कि विल गो टू रूरल बिकॉज in the urban sector there are a lot of over capacity which exist. इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे क्लिनिक्स हैं, वो अवेलेबल हैं। तो हमने ये सोचा कि हम रूरल के ऊपर फोकस करते हैं। 6.25 लाख गांव हैं हमारे पास, इतने सारी जगह सब लोग नहीं पहुंच सकते, हम अकेले भी नहीं पहुंच सकते। हम तो बल्कि कहते हैं हमारे जैसे और भी लोग आओ, हम अपना मॉडल शेयर करते हैं, आप भी आगे आइए और इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अभी आपने कल्पना जी बहुत अच्छी बात बोली कि टेलीमेडिसिन का मतलब खाली एक वीडियो कंसल्टेशन कराना ही नहीं है, क्योंकि वीडियो कंसल्टेशन में बहुत सारी चीज़ें आपके पास पहुंच ही नहीं रही हैं। जैसे मरीज उस समय किस स्थिति में है ये आप खाली वीडियो से देख के नहीं बता सकते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारे को ऐसी डिवाइस चाहिए जो तुरंत वहाँ पे उसको असेस करें और इमीडिएटली डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन आए। ऐसी भी जरूरत है, मतलब ठीक है दूसरे भी हमारे पास प्रावधान होते हैं, लेकिन अब छोटा सा गांव है, वहाँ पे लैब नहीं होती है, लैब होगी तो 50 किलोमीटर दूर होगी, वो कब टेस्ट कराने जाएगा। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो अब आ रही है वो है पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक डिवाइसेस की। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले ए मेजर रोल, because understanding the patient's concern, understanding the patient's condition at that moment जब उसका कंसल्टेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तीसरी चीज जो जहाँ पे अभी हम लोग टेलीमेडिसिन कंपनीज या हेल्थ क्लिनिक एम हेल्थ कंपनीज नहीं जा पा रहे हैं, वो है मेडिसिन सप्लाई करने की। मेडिसिन सप्लाई काफ़ी सारी ई फार्मेसी चेन आई है, लेकिन वो भी अभी सीमित हैं टीयर 2 टाउन तक, टीयर 3 तक कुछ पहुंची है, पर टीयर 4, 5, 6 तक कोई नहीं पहुंचा है वहाँ पे।
अब हम जाते हैं तो हमने भी सोचा था कि हम अपनी क्लिनिक में मेडिसिन देंगे, बट उसमें एक सरकारी नियम है कि जब तक ट्रेन फार्मासिस्ट या क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं होगा तो हम मेडिसिन नहीं डिस्पेंस कर सकते। तो इस वजह से हम अभी रुके हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि या तो लॉ में कुछ चेंज हो या कोई और तरीका हो, जैसे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो डिस्पेंस भी कर सकता है, सेल नहीं कर सकता बट डिस्पेंस कर सकता है। क्या पता आने वाले टाइम में ये भी एक रूल चेंज हो जाए, जैसे टेलीमेडिसिन का चेंज हो। इनफैक्ट टेलीमेडिसिन एक्ट जो लेके आए ये मार्च 2020 में गवर्नमेंट, that was very revolutionary, that was very fast adaptability of the technology which was required at that time to manage the pandemic issues, and वो उसने बिल्कुल एकदम सही कर दिया, क्योंकि अब हम भी ऐसे टेलीमेडिसिन कंपनी बहुत सारी चीजों का पालन करते हैं। हम भी अब सारा रिकॉर्ड अपने पास सही ढंग से रखते हैं, हम उसके सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन क्वालिफाइड डॉक्टर का होता है, उसका लाइसेंस नंबर लिखा होता है। तो इससे क्या होता है, इससे उसका जो मरीज है उसका भी हौसला बढ़ता है और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं एक प्रॉपर ढंग से मेरा इलाज हो रहा है, ना कि कोई भी आदमी आके मुझे कुछ बता के चला जाए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम देखें तो टेली कंसल्टेशन में हम टेली मेडिसिन में हम टेली कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, हम टेली डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं या टेलीपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम मेडिसिन पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और चौथी जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक सही दिशा में हॉस्पिटलाइजेशन कैसे किया जाए। बहुत दफा गांव में अगर मरीज को ये भी पता लग गया कि आई नीड ए हॉस्पिटलाइजेशन, पर उसको ये नहीं पता मैं कहाँ जाऊं। पहला ऑब्वियसली गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट है तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाया जा सकता है, बट प्राइवेट में जाने पे भी बहुत ज़्यादा टाउट्स बेस्ड सिस्टम चलता है वहाँ पे। उसको भी एक निवारण करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे एक्चुअली हम जो ई हेल्थ कंपनीज हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम एक सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पे उसको पता लगे, जैसे पॉलिसी बाजार में आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कौन सी पॉलिसी कितने में अच्छे से मिल सकती है। ऐसे ही हमारा अगर सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पे हमें मरीज को ये पता लग जाता है कि मेरे पास ये 10 ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ जा सकता हूँ, इसका इलाज इतने में होता है, और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं और उनका क्या रेटिंग है। आई थिंक जैसे ये सिस्टम डेवलप होता चला जाएगा बहुत सारी चीजें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। टेलीमेडिसिन कंपनीज का रोल बहुत है। हम सबसे ये आग्रह करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आओ। हम अपना मॉडल भी बहुत सारे लोगों से शेयर करते हैं कि इस मॉडल को लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज जो आती है जो कई जगह हमने बाकी कंपनियों में देखा मिसिंग है, वो है कि गांव का जो मरीज है वो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पे बिलीव करता है। वो एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी इसलिए जाता है कि मेरा इलाज हो जाएगा। ये खाली टेक्नोलॉजी से हम इलाज नहीं कर सकते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बहुत जरूरत है यहाँ पे। हमारे पास हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मध्य प्रदेश में हम काफ़ी काम करते हैं, वहाँ पे जन स्वास्थ्य रक्षक भी अवेलेबल हैं। अभी CHOs जैसे डॉक्टर साहब ने बताया CHOs भी हैं वहाँ पे। तो ये जो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने साथ करना जरूरी है ताकि आप एक साथ काम करें, ना कि आप अपोजिट काम करें। दूसरा हमने ये देखा जो ग्राम प्रधान होते हैं इनकी भूमिका बहुत रहती है वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको गांव के अंदर जागृति लानी है, हेल्थ तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके अलावा एजुकेशन भी है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी भी है, उसके अंदर सैनिटेशन भी है। हेल्थ अपने आप में आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है। अब इसके अंदर ग्राम प्रधान की भूमिका काफी हो जाती है, बिकॉज वो एक सबको एक साथ संयोजित करके चला सकता है। So lot is possible in the village area. We have traveled, in Madhya Pradesh, UP, Bihar also, and we found that yes, there is a scarcity of resources, but क्या इसको हम democratize नहीं कर सकते? जो ओवर कैपेसिटी आज हमारे पास अवेलेबल है सिटीज के अंदर, सारे डॉक्टर पढ़ के सारे वहीं आ जाते हैं, तो क्या उनको डॉक्टर्स को वहाँ, ऑब्वियसली सरकार ने बड़ी कोशिश करी कि लोगों को भेजे रूरल पोस्टिंग पे, लेकिन वो फिर भाग जाते हैं वहां से। तो टेलीमेडिसिन एक इतना अच्छा माध्यम है जिसमें हम ओवर कैपेसिटेड, जहाँ पे स्पेसिफिक लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम गांव तक पहुंचा सकते हैं थ्रू यूजिंग दिस टेलीमेडिसिन मीडियम। So this is और यही fantastic. हमारी सोच है। So Ajay Sharma sir has made some very valid points which I like to sum up. So what he said that कि health अपने आप में we are 6+ lakh villages, so vast population, and true that state takes it as a responsibility, but quality health for care में private players are keen to come, and technology एक ऐसा माध्यम है जो इसको स्पीडी वे में प्रोलिफरेट कर रहा है. So the second point that I
would like to say that there is need that a comprehensive and the point of delivery हमें रूरल एरियाज में देनी पड़ेगी. So so what statistics say that our healthcare, our 75% of the population is in the rural areas, and your 25% population is in urban areas, whereas 79% of health industry expenditure happens in अर्बन एरियाज. आपके अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ आर्ट सारे अस्पताल अर्बन में हैं, सारे डॉक्टर वहीं बैठे हैं, सारी सर्विस डिलीवरीज भी शहरों में ही हो रही है. सो देर इज अ ग्रेट वैक्यूम ऑफ द पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी. और एक चीज और भी हम समझ रहे हैं कि इन इंडिया we have a huge, because of this huge population, we have a huge disease burden. So जब कोई एक बीमारी क्वालिफाइड डॉक्टर तक नहीं पहुंचती है, तो वही एक छोटी बीमारी जो है takes a bigger show. So you have a lot of non communicable diseases, क्योंकि communicable diseases में गवर्नमेंट does the wonderful thing. TB ये सब जो कम्युनिकेबल है उस पर गवर्नमेंट ने पूरी पकड़ रखी है, इम्यूनाइजेशन करता है, अवेयरनेस करता है. बट यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ डिजीजेस विच आर कमिंग इनटू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो मानिए चलिए कि उनको लग रहा है कि मेरा ना सिर दुख रहा है, और वो गया और किसी ने उसको बोला कि हाँ तुम आजकल सर्दी भी जुकाम भी है. He pops up a tablet, a Jola Chap doctor takes care of him and he takes. But वो जा नहीं रहा है, and then he takes it as a matter of fate. But what you understand that this guy is suffering from blood pressure, and a prolonged blood pressure takes all kind of diseases. Organ health ही उसका खराब हो जाता है. और since I work with lot of health non-government organization, so I was in the ministry and somebody told me, can जिस भी organization में आप हो, क्या आप BP checkup कि किसी तरह का जो constant सिर दर्द है, बेचैनी है, कम नींद आना, this could be your BP. and ये सिर्फ बुढ़ापे में नहीं होता है, ये आपके इवन यंग एज में भी होता है. और हमारे यहाँ पे डिजीज का इतना बड़ा बर्डन आ रहा है. तो आई फुल्ली agree with Ajay ji that the private sector has to come complement with vis-a-vis the quality of good doctors and have amazing diagnostic devices. अगर मेरा हार्ट बीट रेट कुछ पता चलता है, तो क्या अगर मेरा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एक छोटी लेवल पे है, तो ये डायग्नोस्टिक मुझे कुछ कहता है. सो वी टेल द पेशेंट that he would need a cardiovascular checkup etc etc. तो आपने एक बहुत भयंकर रोग से ही उसको पहले कर लिया. So if wellness is one thing, the early identification of disease is also very very important. और उस early identification of disease में हमें ज्यादातर जो बड़ा रोल दिखता है कि if we could have a revolutionary some basic diagnosis which then play a role of early identification. मेरा अगर थायराइड ही बहुत बड़ी ना, योर थायराइड रैम्पेंट है, लेकिन गांव में बेचारों को नहीं पता है. when they reach to a topmost situation and then they get into the net. So these are some of the diseases where we take the intelligence data that what kind of areas have rampantness of a particular disease, be it because of the water, kind of water, because of the food habits, etc. वो सारी चीजों का जो intelligence health portal पे आए. Health portal should not be only, I just once again said, how many patients are there, what is his age, what, how much was it. So this artificial intelligence जो हम बोलते हैं, so that should become handy to private players so that they can bring in amazing models which can actually take early identification of such diseases and reduce the burden of
डिजीजेस। ये सिर्फ नॉन डेमोक्रेटाइजेशन कि हम उनको इलाज नहीं दे पा रहे हैं रूरल में, ये सिर्फ उतना नहीं है, इट इज इनह्यूमन, इट इज डिसप्रपोर्शनेट, इट इज अगेंस्ट एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। हम अगर डिजीज के बर्डन के तले ही दबाते हैं सिटीजन्स को, so they do not remain productive for the country. So we, a youth vibrant economy को हम एक डिजीज्ड, एक अच्छा फिगर आता है जो अनप्रोडक्टिव होता जाता है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिकॉज एक लास्ट डेकेड में, क्योंकि 2005 में आपने आशा को एक रूरल हेल्थ सिस्टम में डाला था, डॉक्टर हीरालाल सर, द क्वेश्चन इज फॉर यू। एंड इफ आई अंडरस्टैंड, 2005 और 2006 में आशा एज एन लास्ट माइल सोशल कम्युनिटी मोबिलाइजर जो हेल्थ की सर्विसेज का एक्सेस बढ़ा दे। सो पहला जो आशा को आपने रोल दे दिया कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए उनको तैयार करे, कि जो वेयर द चिल्ड्रन वर बोर्न एट द होम्स, व्हाई दे कैन नॉट बी बोर्न इन द हॉस्पिटल्स। तो उस रोल से आपने उसको शुरू किया। लेकिन आज मैंने देखा है, स्पेशली इन द कोविड, दिस अमेजिंग रूरल हेल्थ मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, एक ह्यूमन स्पोक ऐसा है वहां पे आपका जो बहुत डिलीवर कर रही है। मे आई नो व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम कह रहे हैं 9 लाख आशाएं हैं, तो विच आर द स्टेट्स विच आर वर्किंग टू मच ऑन द आशा मॉडल्स। एंड वो जो अजय शर्मा जी का ट्रस्ट पॉइंट भी था कि कैसे इस ट्रस्ट पॉइंट को और बड़ा किया जाए, कैसे उसको इवन हाउ कैन वी इंटीग्रेट हर मोर इन द गवर्नमेंट health, rural health deliveries as well as in the private. So I'll first ask this question to Dr. Hirala. I think, sir, you're not audible. You're unmuted. No, no, not yet. No. Adat, हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट के लाइक पे दूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं इस समय मॉडल गांव की ऑफिस में बैठा हूं। आई रन ए सोशल प्रोजेक्ट मॉडल गांव, हाउ टू डेवलप द विलेजेज इनटू मॉडल गांव टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी रिपब्लिक विलेज एज वेल एज द पूरा स्कीम ऑफ द our late president Dr. APJ Abdul Kalam. 10 days back, a professor from New York who is hailing from the district Banda visited this office. तो हम लोग चूंकि आए थे तो उनको टेस्ट कराना पड़ा कि उनको ये कोविड है कि नहीं है। तो हम लोग कोविड पे डिस्कशन कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि अमेरिका तो फैसिलिटी है, मैं वही जो बात उन्होंने कहा मैं आपके इस डिस्कशन में भी लाना चाहता हूँ। वहाँ मेडिकल की फैसिलिटी भी है, क्वैक्स नहीं है, सब लोग जागरूक हैं और सब पढ़ी लिखी आबादी है। इसके बाद भी वहाँ का जो डेथ हुआ है, डेथ रेट अमेरिका का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। ये उनका कहना था प्रोफेसर साहब का जो आए थे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, मैं ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में जब अभी आप बात कर रही थी इसका तो अचानक आया जो मैं यहाँ शेयर करना, कि सारे हेल्थ सेक्टर हैं, सारे अवेयरनेस हैं, सारी जानकारी है, धनी भी हैं, एवरीथिंग इज देयर, फिर भी वहाँ डेथ रेट ज़्यादा है। और जहाँ शॉर्टेज है, जहाँ लैक है, वहाँ डेथ रेट कम है। तो इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि सब चीज़ होते हुए भी हमारा नुकसान क्यों हो गया इन अमेरिका, और हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ना होते हुए भी हम अपर साइड में थे। तो ये क्वेश्चन अभी जब आप बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया वो प्रोफेसर को लेकर के। तो यहाँ काफ़ी डिस्कशन इस मुद्दे पर हमारा उनसे हुआ। न्यूयॉर्क में बहुत खराब हालात थी उस समय। एनीवे, अब आपकी बात जो ये अभी आप आशा की बात कर रही थी, देखिए आशा जो है, जब आशा को हम लोगों ने शुरू किया था, जब ये प्रयोग शुरू किया था, तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आशा उस गांव की, जिस गांव में वो काम करती है आबादी, एक गांव में कहीं कहीं एक ही आशा है, कहीं कहीं दो दो आशा है। तो वो आशा जैसे होता क्या है, एक मतलब ब्लॉक लेवल पर सीएससी होती है, फिर उसके नीचे पीएससी, सबका एरिया बटा हुआ है। तो अगर इसको आशा को डिफाइन करना चाहता हूँ एक मतलब समझने की भाषा में, आशा उस गांव के सीएससी, आप समझिए वो गांव की वो डॉक्टर है, और आशा को धीरे धीरे ऑनलाइन ऑफलाइन
बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई और वो मैक्सिमम चीज़ें समझ गई हैं, क्योंकि उसका जो काम है वो वर्क बेस है। ये काम करेगी तो इतना रुपया मिलेगा, ये काम करेगी तो इतना रुपया, हर काम का स्टेप है। इसलिए वो हर काम के स्टेप को भी समझती है, क्योंकि उसे स्टेप पे पैसा मिलता है। तो उसमें कोई स्टेप लूज नहीं होता है, बिकॉज ईच स्टेप इज हैविंग मॉनिटरी इंटरेस्ट। और मैं आपको बताऊं, जैसे यूपी है, मैं यूपी में हूँ, तो हम लोग वहाँ एक BHND डे बनाते हैं, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। उसमें केवल आशा नहीं, एएनएम जो उसकी सुपरवाइजर जस्ट होती है, सुपरवाइजर, पूरे गांव के लोग, आशा, आंगनबाड़ी, सब उसका नाम ही है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। यस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कम से कम महीने में एक दिन या न्यूट्रिशनल डे के दिन पूरे महिलाओं को पता होता है कि सब लोग आएंगे और सब लोग जो है यहाँ इकट्ठा होंगे। तो जो आप बात कह रही थी अभी कि कोई है जानकारी नहीं होती है, उस दिन लोग आते हैं और वहीं वो सब समझ लेती है कि इसको यहीं दवाई या देने से काम हो जाएगा, एएनएम रहती है, या इसको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है तो वो न्यूट्रिशन में आशा आंगनबाड़ी रहती है, वहां से उसको, या ये रिफर करने लायक है तो वो तुरंत ऊपर एडिशनल पीएचसी या सीएचसी पे रिफर कर देते हैं। तो ये जो आशा का कॉन्सेप्ट है, ये बैकबोन है आज के डेट में मेडिकल हेल्थ का। अब ये जो आपका टेक्नोलॉजी वाला ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो है टेलीमेडिसिन वाला लेके आए हैं, तो आशा ही बेसिक लेवल से आशा ही उन्हें कैच करती है और लाती है। कोई बात, क्योंकि हम लोग अभी आशा की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अभी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सबको मोबाइल दिया है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन दिया अच्छा। है, जिससे कि वो उसको पता भी है और उसको तुरंत बात करना है और तुरंत करना। जब कनेक्टिविटी और हार्डवेयर नहीं होंगे तो कैसे कर पाएगी। तो आशा ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और मैं आपको बताऊं, आशा के प्रोत्साहन के लिए प्लान में है कि हर साल में एक आशा सम्मेलन होता है और उस आशा सम्मेलन का एक बजट होता है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, बहुत बड़ा। जो आशा अच्छा काम करती हैं, दे आर बीइंग रिवार्डेड इन दैट सम्मेलन। तो ये आशा का जो कॉन्सेप्ट है, ये रीढ़ बन चुकी हैं और इससे हेल्थ केयर बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, मेरा पर्सनल अनुभव है और ये सही बात है। So thank you so very much, and Hiralji, once again I would thank government and for the information of Ajay Sharma ji, who also is in touch with the industry members. तो आशा को इन्होंने हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन पे, शी इज एथोराइज्ड टू वर्क फॉर एनी प्राइवेट प्लेयर एज वेल। तो उसे कितने प्राइवेट प्लेयर्स भी आकर के उसको बिल्डिंग द फर्स्ट डिटेक्शन, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे हमने बहुत आम भाषा में उसको बोला कि अगर बहुत लंबा जोड़ों की दर्द है तो ये बिल्कुल उनके घुटने खत्म ना हो जाए उससे पहले उनका कुछ कर सकते हैं हम। तो इस तरह के अगर उनको एक सिम्टोमेटिक नॉलेज दी जा सकती है तो वो एक बहुत बड़ी रेफरेंस पॉइंट बन जाती है हमारे लिए कि हम उनको विद इन द कम्युनिटीज में जो ट्रस्ट वो एंजॉय कर रही है आज की डेट। एंड आई एम ग्लैड टू शेयर विद यू दैट वी हैव 9 lakh ashas all over the country. So if you say that if I have 6 lakh plus villages, then तो I have more ashas. जैसे सर ने कहा कि ideally हम आशा को 1000 की पॉपुलेशन पे रखते हैं, तो कहीं पे 2 हो गई, कहीं पे 3 भी हो गई आशास। तो इस आशा का एक, शी इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सीलेंट ह्यूमनाइजिंग द रूरल मॉडल। तो ये भी इस डेकेड में आशा का रोल जो शुरू हुआ था वो हुआ था कि वो बच्चों को वैक्सीनेशन दिला देगी एंटीनेटल डेज पे, और उसके बाद में आज की डेट में इन पास्ट 2 years she was even used for corona education, corona detection। वो घर घर जाके पूछती थी अगर किसी का फीवर है तो इट इज वेरी मच डूएबल, आप जल्दी से अपना चेकअप करवा दो, टेस्ट करा दो, कहीं कोरोना तो नहीं आपको हो गया है। तो आशा is a great example of humanizing. My question to will come back to Ajay ji sir. So Ajay sir, अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी से अभी तक जितना भी मार्केट प्लेस है, मडी बडी और वॉट एवर बिग
प्लेयर्स जो हेल्थ टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम नहीं है, और ये इन्होंने अपने आप को अभी भी, आई वुड से कि हेल्थ टेक इज स्टिल मोर फोकस्ड ऑन अर्बन, वो अर्बन में यस। ही बहुत ज्यादा है। एंड आई विल से कि अगर कोई हेल्थ टेक कंपनी लखनऊ जैसे शहर में, प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के भोपाल में कर रही, तो इट इज विथ embedded and full of all medical infrastructure, private, government, आपको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे। तो हेल्थ टेक कंपनीज रूरल में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आपके गवर्नमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमको सिक्योर डिजिटल नेटवर्क्स भी दे रखी हुई हैं। नाउ टेली हेल्थ एप्लीकेशंस जो भी डेवलप हो चुकी हैं, आई थिंक शर्मा जी आप एग्री करेंगे कि यू आल्सो आर वर्किंग ऑन अ टेली हेल्थ ऐप जो उसके टेस्ट लेती है, जो उसका यू नो शी गेट्स फेस टू फेस विद द डॉक्टर्स। लेकिन इस सारी चीज में डिवाइसेस and diagnostics, and then once again the quick delivery of the first point of consultation में what is your thoughts कि what should actually technology companies do, and सरकार के उस काम को वो कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते? आई थिंक गवर्नमेंट के पास बहुत डेटा होता है, और दोनों काम, मतलब मैं गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट प्लेयर दोनों तरफ से बताता हूँ। अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, एक तो आपने बोला कि ज़्यादातर जो ई हेल्थ कंपनीज हैं वो अर्बन सेक्टर में ही हैं, बिकॉज मनी है वहाँ पे एंड दे वांट टू चर्न आउट द मनी। अगर किसी ने उनके यहाँ इन्वेस्ट किया है $30 million, तो somebody is looking for रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। जो हमने चालू किया रूरल में, तो हमें सबसे बड़ा समस्या ये आई कि हम अपना कॉस्ट को कैसे कम रखें। आज अगर मेरे को एक सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए शहर से, तो वो यहाँ पे अगर 1000 रुपये या 1500 रुपये चार्ज करता है, तो मैं उससे 300 रुपये में नहीं करा सकता रूरल हेल्थ के अंदर। तो हमारे को लोगों के पास जाना पड़ता है, उनसे बोलना पड़ता है कि आपका कोई तो टाइम दीजिए, क्योंकि हम लो कॉस्ट पे जा रहे हैं। हम तो एनजीओ नहीं है, हम प्रॉफिट कंपनी है, बट फिर भी हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते कि सिस्टम ही बर्डन हो जाए। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो ROI है वो कम है, तो इसमें कम कंपनीज आना चाहती हैं रूरल सेक्टर के अंदर। सेकंड थिंग जो आपने बोला कि हम डिवाइसेस के ऊपर या डेटा के ऊपर कैसे काम करें। डॉक्टर हीरालाल ने शुरू में बोला था कि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जैसे हर इतवार को, हर रविवार को हम कैंप लगाते हैं, सिर्फ 10 रुपये लेते हैं उसके अंदर, और कोशिश यही होती है उसमें पेशेंट एजुकेशन करी जाए, और साथ में कुछ बेसिक टेस्ट जो है करते रहें, ताकि लोगों के अंदर जो उनका डेटा है वो हमें पता लगे कि कहीं पे कोई डिजीज पैटर्न तो नहीं शुरू हो रहा है। अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है, थोड़ा सा है, जिसके अंदर हम लोग आशा वर्कर्स को अभी उतना नहीं इन्वॉल्व कर पाए हैं, बट हमने एक जन स्वास्थ्य रक्षक एक और ऑप्शन थी हमारे को, हमने उनको किया है, जहां हम देश कार्ड, मतलब अपनी कंपनी का नाम लेके देश कार्ड है, जहाँ पे हम प्रिवेंटिव की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें पेशेंट एजुकेशन एज वेल एज टेकिंग द डेटा। आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, आपके यहाँ कोई इस तरह की डिजीज तो नहीं हुई है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है गुड डायग्नोस्टिक। अभी एक केस मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा गांव है, बांदा जिले के पास से पड़ता है आपके हीरालाल जी। वहाँ पे छोटे से गांव में एक बच्ची को 3 महीने से बुखार चल रहा था। अब वो बुखार की दवाई खाए जा रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ एक डॉक्टर ने, सीनियर ने देखा, तो उसने कहा ये तो टीबी सस्पेक्ट करते हैं हम इसको, जिस तरह का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है इसको। अब उसके बाद उसने, अब टेक्नोलॉजी कहाँ पे आती है, अब यहाँ पे आती है टेक्नोलॉजी कि क्या हम मिनिएचर साइज की जो एक्सरे मशीन रहती है, जो छोटे साइज की रहती हैं, क्या हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं लोकल लेवल पे? क्या जैसे ही वो वहाँ पे उसने एक्सरे लिया, क्या AI डिटेक्ट कर सकता है कि इसके अंदर कोई चीज़ है, ताकि इवन डॉक्टर की इंटरवेंशन से पहले ही पता लग जाए कि क्या चीज़ हो सकती है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो एरियाज हैं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है टेलीपैथोलॉजी, जिसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रहा हूँ बिफोर कमिंग टू हेल्थ केयर, और पिछले 20 साल में मैंने देखा हमारे यहाँ बहुत सारे सेंसर्स होते थे जो विदेशी कंपनियां यूज करती थी, मैंने अपने यहाँ पे कभी नहीं देखा यूज करते हुए, बट अब धीरे धीरे इंडियन कंपनीज भी आ रही हैं। ये जो चीज है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ये एक मोटो होना चाहिए टेलीपैथोलॉजी का, जिससे प्रिवेंशन को बढ़ावा दिया जाए, ना कि डिजीज को बाद में क्योर करने के ऊपर हम फोकस करें। तो हमारी तरफ से, जो गवर्नमेंट की, प्राइवेट प्लेयर की तरफ से, ये सभी को, गवर्नमेंट को भी एनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीपैथोलॉजी पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोस्टिक डिवाइसेस ऐसी लाएं जो फर्स्ट लेवल पे ही पता लगा सके डेटा को।
सेकंड चीज, जो डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, जैसे बीमारी कहाँ से आती है, खाने से आती है, पीने से आती है, या हवा से, वातावरण से भी आती है। तो ये जो जो डेटा का सिमुलेशन है, जब ये हमारे पास EHR आ गया, अभी 3-4 साल में काफी डेटा इकट्ठा हो जाएगा, सिक्योर रहेगा। बट अगर इसको हमने मिक्स किया और या हमने मर्ज किया विद सॉइल डेटा, क्लाइमेट डेटा, वाटर डेटा, देन वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट। या जैसे अभी बहुत सारे पेस्टिसाइड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, पंजाब के अंदर बहुत कैंसर आ रहा है बिकॉज पेस्टिसाइड, या दोस आर गेटिंग यूज। तो ये जो डेटा का एसिमुलेशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो AI को अगर हम यूज करेंगे तो बहुत काम की चीज निकल के आएगी आने वाले टाइम में। तो दो चीजें मैं फोकस करूंगा, एक टेलीपैथोलॉजी पे और दूसरा डेटा का यूसेज प्रॉपर ढंग से। So the discussion has become all the more interesting because this tablets and devices are not end of it. वो जो एक Yes. intelligent assimilation of data, and that data access has to be for the public good. So there in these rural health model systems, they should have. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वी आर नॉट वन स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप की एक पैटर्न निकल के हमारे यहाँ पे आएगा. सो व्हाट माइट बी प्रेवलेंट इन उत्तर प्रदेश इज नॉट प्रेवलेंट इन एपी. आपका एपी के कुछ पैचेस में बहुत ज्यादा स्किन डिजीजेस का इंसिडेंस है, सो दैट इज नॉट ट्रू. अब राजस्थान शो सम पैटर्न. अगर आप इधर अपर राजस्थान का देखेंगे तो एक बिकॉज ऑफ देयर डाइटरी exercises and the kind of dry weather it is, तो उनके एक अलग ही डिजीज पैटर्न निकल के आ जाता है. तो आई थिंक दिस इज द रियल टाइम व्हेन द इंफॉर्मेशन का इंटरप्ले हो जाए एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग बिहेवियर चेंज. एक रूरल हेल्थ की बात में हम ये करते हैं कि देखिए समथिंग वेरी, आई थिंक आई शुड हैव स्टार्टेड आवर रूरल हेल्थ मॉडल्स का एवोल्यूशन में सबसे बड़ा 2 साल में देखा. हमको 25 साल सारी प्राइवेट कंपनीज को, साबुन की कंपनी को लग गए होंगे कि हाथ धो लो हाथ धो लो, लेकिन पिछले 2 सालों में पेंडेमिक के बाद में एवरीबडी नाउ नोज दैट हैंड वॉशिंग इज वेरी क्रिटिकल. सैनिटाइजर की मतलब एक ऐसी आपदा आई कि हाइजीन को उसने एकदम से एड्रेस कर लिया. तो आज we will see a very less incidence of those kind of infections where the hand washing could have been a biggest culprit. So opportunities and challenges both aate hain. They bring in the evolution of the models. Now rural as a big vast geography जो बहुत ही diverse है हम as a country, needs actually the most, अगर टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा जरूरत जो कहते हैं ना यूसेज जहां होना चाहिए, बी इन इंडियन हेल्थ. आई रियली सी दैट इफ देयर इज अ वंडरफुल आइडिया. आई डोंट नो हाउ मच वी फनल ये कितना लोगों तक रीच करता है. अगर इंश्योरेंस का पॉलिसी बाजार है तो मुझे एक पर्टिकुलर बीमारी है तो which best city has best doctor for me and what does that cost me. और फिर अगर आपने एक सिस्टम रखा जिसमें पब्लिक ही रेट कर रही है तो वो कितना अच्छा है. जैसे अगर आप देखेंगे हम लोग ई कॉमर्स की कंपनियों के साथ डॉक्टर हीरालाल जी काम करते हैं, तो वहां क्या देखते हैं आप, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते नीचे रेटिंग देखते हैं कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट के लिए क्या बोला है. तो इवन इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ क्लैम्प ऑन medical fraternity of doing the just practices, क्योंकि एक पेशेंट एक्सप्लॉइटेशन और सही प्रैक्टिसेस का भी एक दौर चलना चाहिए. एंड रूरल पर से जो एक पॉपुलर जहाँ पे वैक्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, वैक्यूम ऑफ एक्सेस है, वैक्यूम ऑफ रेजिंग द वॉइस शेयर. पहले अगर गलती से अगर डिटेक्ट हो गया कि जी ये दिल का मरीज है, जी लग रहा है कि हार्ट का शो कर रहा, तो वो 10 जगहों पे आप घूमता फिरता रहता है कि मैं कहाँ जाऊं. फिर उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो मुझे लूटेगा या नहीं किएगा. तो ये डेमोक्रेटाइजेशन होना जरूरी है बिकॉज अर्बन में वी कैन वॉक टू 4 हॉस्पिटल
हीरालाल जी, वेयर आई एम लिविंग, आई लिव इन नोएडा। तो अगर मुझे किसी भी चीज का डायग्नोस्टिक चाहिए, किसी भी चीज का मुझे कंसल्टेशन चाहिए, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। I can walk in 4 directions. I have illustrious 4 hospitals where I can make an option. I feel good. लेकिन हमारी जो रूरल की जनता है, जब एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचती है, तो वो शायद 300 किलोमीटर से आ रहा है, शायद वो 1000 किलोमीटर से भी आ रहा है फॉर एनी सुपर स्पेशलिटी। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन हेल्थ is very much wanted, and government should look forward to certain compliances where these, मतलब अगर एक हॉस्पिटल है तो क्या एक एक कॉमन पोर्टल है जहाँ पे हम देखें कहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ कौन से डॉक्टर है, व्हाट प्राइस दे आर गिविंग मी, व्हाट डायग्नोस्टिक्स आर अवेलेबल, एंड द रूरल कैन मेक चॉइसेस। एंड जिस तरह अर्बन में एक कंपटीशन सेट होता है, तो क्या एक रूरल कंज्यूमर भी, जो एक रूरल जनता, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा अंडरसर्व्ड है, तो ये कैसे ऊपर आ सकती हैं एंड रियली एक्ट एज इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। हमने, क्योंकि इस सब और इस चीज में भी आई वुड जस्ट से द गवर्नमेंट कैन बी अ ग्रेट स्टार्टर बाय मेकिंग सर्टेन लॉज, रेगुलेशन, एंड इट इज अ मैटर ऑफ, आज सभी को पता है। आप किसी से, मैंने in my one of the rural visit, I asked a lady, आपकी एज क्या है? थोड़ा घूंघट घूंघट में थी, तो मैं समझ नहीं आया उसकी एज क्या हो सकती है। तो उन्हें तुरंत अपना आधार कार्ड मेरे सामने कर दिया। शी टोल्ड मी, यू कैन मेक आउट माई एज फ्रॉम माई आधार। तो आज उसको अगर पूरा ये पता नहीं है कि मेरा पूरा कैलकुलेटेड डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसे पता है मेरा आधार मुझे मेरी एज बता देता है। तो आर वी गोइंग इनटू दोज काइंड ऑफ directions by democratizing the information with regard to health services, and एक compliance होती है कि अब जैसे आप एक डॉक्टर को बोलते हैं प्रैक्टिसिंग की लाइसेंस है, तो क्या पेशेंट को भी एक विंडो है क्या कि कहाँ कौन डॉक्टर कितने रुपए में मेरा क्या इलाज कर सकता है? So that is what I was assimilating for here. But I would also like to hear a little bit from Hiralal ji about the Ayushman Bharat, which they say is a paradigm shift in the rural health. तो ये बॉटम ऑफ कम्युनिटीज को, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन एन इजी टर्म, ये कौन कौन क्वालिफाई करते हैं और ये क्या प्रॉमिस करता है, एंड आई, इफ आई एम राइट, दैट हाउ इज इट आल्सो इंटीग्रेटिंग द प्राइवेट पार्टनर्स? यानी वो आप थोड़ा सा अगर आप समझा दें, बिकॉज वी आर इन अ 1 hour डिस्कशन एंड आई थिंक वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू गो। या देखिए, आयुष्मान भारत का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज अभी वी आर वर्किंग सेपरेटली इन साइलोज, एंड उससे सिनर्जी इफेक्ट नहीं आ रहा है। एक बात, दूसरी बात, आज के डेट में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के, हमारे खून में आ गया है। तो अभी जो हेल्थ सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी तो उसके खून में आया है, केवल हमारा मानना है 20% आया, अभी 80% आना है। यही आयुष्मान भारत है। जिस दिन आयुष्मान भारत का जो कॉन्सेप्ट है, वो 3-4 साल जो भी लगेगा, क्योंकि वो शुरुआत हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, सारी चीज़ें प्रॉपरली उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, और चीज़ें आने में, रियलाइज होने में समय लगता है। जिस दिन आयुष्मान भारत हो जाएगा, तो जो पैटर्न आपका यूपी में ही 10 पैटर्न निकाला जाएगा, क्योंकि वो तो जो पैटर्न जिस एरिया का होगा उसी में काम करेगा, वो दूसरे एरिया में, यूपी के ही दूसरे एरिया में नहीं काम करेगा। और अभी क्या है, देखिए आज के डेट में जो प्रैक्टिकली हम महसूस करते हैं, डिमांड सप्लाई में गैप है। हमें जो हेल्थ केयर की सर्विसेज चाहिए, जो डिमांड है, वो हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी टेली मेडिसिन का में जो संजीवनी है, संजीवनी क्यों पॉपुलर हुई? बिकॉज संजीवनी इज फुलफिलिंग दैट गैप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी जो आप एआई की बात कर रहे थे, इस पर भी एक बात चल रही है कि भाई, जब आदमी डॉक्टर आमने सामने बैठता है तो उसका फेस रीडिंग करता है, उसकी आंख देख लेता है, ये तो उससे नहीं मालूम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि कुछ इमोशनल कोसेंट भी वो ले डायग्नोसिस में, जो आप कहना चाह रहे थे। ये टेली जो है डायग्नोसिस में, ये बड़ी ज़रूरत है। तो ये जो आयुष्मान भारत है, जैसे
आप आयुष्मान भारत को समझने के लिए आज बैंकिंग आप समझ लीजिए, सारे बैंक की जरूरत नहीं, मैनलेस बैंकिंग हो गया, 24/7 आप पैसा निकाल सकते हैं। आप बैंक में जाने की ही जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम लोग, ये नई पीढ़ी तो यही कर रही है, 24/7 चले जाइए, आप जो है निकाल लीजिए पैसा। हर चौराहे पर रखा हुआ है एटीएम, वो माइनलेस बैंक है। तो बिल्कुल बैंक स्टाइल में ही हमारा ये हो जाएगा। हो सकता है इसमें ये भी हो एक दिन की किसी की जरूरत नहीं है, कोई बैंक मतलब हेल्थ एटीएम खड़ा है, जैसे हम पैसा निकालते हैं यस। वैसे हम उसके सामने खड़े होकर के जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और वो सब आपका बता देगा। आपको मेडिकल हेल्थ केयर की जरूरत ना पड़े, जैसे कि बैंक में मैन पावर की जरूरत नहीं है, पैसा आप ले रहे हैं। और इस तरह के एटीएम पे काम भी हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शन काम भी कर रहे हैं, बहुत लोग हम लोग को अप्रोच भी करते हैं जी, हेल्थ एटीएम के नाम पे। जी। तो हुँ। आयुष्मान बिल्कुल आप ये समझ जाइए चमत्कार कर देगा। और ये चमत्कार करने का प्रोसेस हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। बस ये टाइम फैक्टर है। तो ये रिवॉल्यूशन होगा हेल्थ केयर का। और उसमें एक बात थोड़ी है, उसमें जो आप बात कहना चाह रही है उसमें सब चीजें हैं, प्राइवेट भी है, सारी पैथी भी है, सारे चीज है, मतलब एवरीथिंग अंडर वन रूफ वाली बात है। डेटा भी है, डेटा एनालिटिक्स, एवरीथिंग। तो ये रिवॉल्यूशन होगा बैंकिंग सेक्टर की तरह। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आई एम कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग हुँ। सेक्टर। Okay. So for now we understand that the evolution is on the way. So there are a few questions that we are talking about. So somebody is asking us if private partners want to play a role. So what is that they would currently want from the government to deliver on, if they have to, are there hiccups of licensing or what? So this is one of the question that has come कि प्राइवेट सेक्टर को हुँ। अभी क्या लगता है कि सरकार को और क्या उनको करना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर रूरल में कैसे डिलीवर। तो आई आई पुट थिंक दिस क्वेश्चन अजय जी, हुँ, क्योंकि अजय जी का क्वेश्चन ओके। आ रहा है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस समय है वो है अ, लोगों को समझाना कि आप भी हेल्थ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं एट द विलेज लेवल। जैसे जो हमने शुरू किया तो हम तो बहुत कम कीमत पे क्लिनिक शुरू करते हैं ताकि स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब हम उसमें डिवाइसेस लेके आते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो लोकल एंटरप्रेन्योर है। अब जब हमने अप्रोच किया बैंक्स को तो बैंक ने बोला भाई हम तो ऐसे नहीं दे सकते, छोटे-छोटे 2-2 लाख रुपए के लोन नहीं दे सकते हम। तो हम ये क्योंकि इसके अंदर हमारे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम करिए, आप हेड ऑफिस जाइए, वहाँ बात करिए। हमने 2-3 जगह कोशिश करी लेकिन वो बात ही नहीं बन पा रही है उसके अंदर। तो हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अगर हम उनको बढ़ावा दें, जैसे मुद्रा योजना है या जो जो भी हमारे लो लो लेवल के जो लोन्स होते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोपेगेशन हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये जागरूकता कि टेलीमेडिसिन है, जैसे अभी इन्होंने बताया डॉक्टर हीरालाल ने कि आशा वर्कर्स को मोबाइल और इंटरनेट दे दिया है। आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और इसको सभी सरकारों को करना चाहिए, क्योंकि ई-संजीवनी के साथ जो एक समस्या आती है वो आती है कि पेशेंट को समझ नहीं आता कि मैं डायरेक्टली कैसे अप्रोच करूँ उसको, डॉक्टर को, और बहुत दफ़ा वो बात भी नहीं कर पाता है ठीक से। ऑल्दो ई-संजीवनी का यूसेज बहुत हाई हो चुका है बट उसको और भी बड़ा किया जा सकता है। तो यहाँ पे असिस्टेड टेलीकंसल्टेशन की बात हम करते हैं। तो इनको भी एक, जैसे एक हेल्थ सेक्टर काउंसिल का, गवर्नमेंट की काउंसिल है, उनका एक प्रोग्राम है टेली हेल्थ सर्विस कोऑर्डिनेटर का, बट वो 45,000 का है। अब वो इतना महँगा कोर्स सब लोग नहीं कर सकते। तो उसको भी डेमोक्रेटाइज़ करें, उसको कम कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए कि हम टेली हेल्थ सर्विस कोऑर्डिनेटर कैसे बन सकते हैं। और उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आशा वर्कर्स या और भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। उनको पता लग जाएगा कि हमें अगर टेली हेल्थ पे जाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, टेलीमेडिसिन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी के थ्रू अगर सर्विस ले रहा है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं किसी डॉक्टर से बात करना है, तो मैं वहाँ पे एक असिस्टेंट के सामने बात कर रहा हूँ, तो वो उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप डेटा जो है किसी थर्ड पार्टी को रिवील कर रहे हो वहाँ पे। अभी कोई सिस्टम नहीं फॉलो करते हम और उसमें हम चूक कर जाएँगे वहाँ पे, और वो आने वाले टाइम में एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम आशा वर्कर्स को या जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बताएँगे,
तो ये टेलीमेडिसिन सर्विस कोऑर्डिनेटर वाला कोर्स एसेंशियल होना चाहिए सभी के लिए। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिसको आई थिंक अगर हम बढ़ाएँगे, अब जैसे हम लोग आईपीडी लाइसेंस फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं एज़ ए प्राइवेट सेक्टर। हमने कुछ बैंक एनबीएफसी से बात किया कि अगर कोई गाँव के अंदर किसी को पैसे की ज़रूरत है, मान लो प्राइवेट सेक्टर में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो हम उनको बहुत ही कम ब्याज पे उनको लोन की सुविधा उपलब्ध करा दें। ये बातें उन सबको अभी पता नहीं है। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट बैंक की तरफ से भी ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाए, तो और भी एक अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। अभी तो बहुत तेजी से प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आ गए हैं इस फील्ड के अंदर, और उनको वो अभी गाँव में जाने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं है उनको कि वहाँ से रिकवरी होगी, नहीं होगी, वो सारी बातें। बट हम एज़ एन एंटरप्रेन्योर हम रिस्क लेते हैं, हम कहते हैं नहीं हम चलते हैं, आगे देखेंगे, अगर कुछ लॉस होगा तो देखा जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं फाइनेंस से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड एंड ऑल्सो लाइसेंस से रिलेटेड। जैसे अभी क्या होता है, हम लोगों को लाइसेंस नहीं चाहिए टेलीमेडिसिन क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे कई जगह मिसयूज़ भी हो रहा है। हमारी क्लिनिक का नाम लगा के लोग अपनी पैथी चालू कर देते हैं वहाँ पे, जो कि गलत चीज़ है। तो हमने वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए बड़े सारे क्लॉजेस डाले हैं उसके अंदर। लेकिन आई थिंक जैसे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के लेवल पे अगर बताया जाए कि भाई अगर कोई थर्ड पार्टी आके आपको लाइसेंस दे रही है टेलीमेडिसिन का, तो टेलीमेडिसिन का ही काम होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने वहाँ पे डॉक्टरी चालू कर दो बिना कोई क्वालिफिकेशन के। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आई थिंक गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट एनफ टू हैंडल दिस। द फोर्थ एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, जैसे हमने मेडिकल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया, ऐसे अब टाइम आ गया डोमेस्टिक मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का। अभी भी बहुत सारे जब हम लोगों हॉस्पिटल से बात करते हैं, बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे जगह पे लोगों ने हॉस्पिटल खोल लिए, बट उनके पास पेशेंट नहीं है, और बहुत जगह पेशेंट इतने सारे हैं कि वहाँ पे टाइम नहीं है वहाँ पे। तो ये जो डेटाबेस है ये गवर्नमेंट के पास जरूर होगा। अगर हमारे को लगता है कि इंश्योरेंस के अंदर मुझे 1 लाख रुपए में ये सुविधा मिलती है एक्स जगह पे, और मेरा ट्रेवल का खर्चा थोड़ा सा ही ज़्यादा आता है, तो मैं हो सकता है मैं कोचीन जाके इलाज कराया हूँ अपना, क्योंकि वहाँ पे मिलता है, या मैं महाराजगंज चला जाऊँ यूपी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जिसके अंदर पेशेंट अभी ज़्यादा नहीं आते। So I think these are some of the things which the government can do, and we are very happy, as a private player, as an entrepreneur, we are very happy to contribute, go to the government and suggest that what are the alternate means of providing the healthcare. Thank you so very much. So there are a couple of questions which we can then answer send to the Hiralaji and Ajayji privately, because we'll have to follow by the time. We are already outshot, but I'm very tempted to conclude this session. Hiralaji, एक बहुत अच्छी बात हुई कि अजय जी gave us a very good thought of कि tier 2-3 टाउन्स में जहाँ पीपल हैव सेट अप द मेडिकल हॉस्पिटल्स एंड वहाँ पे आपको पेशेंट्स नहीं है, तो इट वंस अगेन कॉल्स फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉवल कॉन्सेप्ट्स। जहाँ अस्पतालों की भीड़ है और जहाँ भीड़ नहीं है, हाउ डू वी एक्चुअली equalize and balance this whole system, and the end result in रूरल हेल्थ शुड बी कि जो सबसे ज़्यादा अंडरसर्व्ड, जो सबसे ज़्यादा मतलब दूर है फ्रॉम द बेस्ट प्लेसेस, उनको हम कितना नज़दीक ला सकते हैं। वेरी गुड थॉट्स हैव कम फ्रॉम दिस डिस्कशन। आई थैंक बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत आभार है दोनों का कि एक अच्छी बातचीत हो गई है। आई मस्ट एश्योर यू कि हम अपने इन वेबिनार्स को बूस्ट भी करते हैं, तो ये इनकी एक वाइड रीच हो जाती है। और आज हमने कोशिश करी है कि एक रूरल हेल्थ सिनेरियो को, जो करंट चैलेंजेस में है, और पिछले 10 सालों में जो एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन हमने आज तक जो आए हैं, उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, and we look forward to conduct much more sessions like this, and we'll always like to host you. थैंक यू, Thank you. धन्यवाद। Thank you very much.